ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ನೀವು ಮುಸಲ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ರಿ. ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕೂಸನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧಿ ಯಾವ राष्ट्रपिता? पाकिस्तान। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर आदर्श नगर पुलिस थाना में यतनाल के खिलाफ एफआईआर। एमएलए यतनाल विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजापुर सिटी बीजेपी से बाहर निकाले गए एमएलए यतनाल का इस बार फादर ऑफ नेशन राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को लेकर अपमानजनक बयान। महात्मा गांधी जी को पाकिस्तान से जोड़कर वहां के पितामह अनाप शनाप बयानबाजी, देश विरोधी बयान का हवाला देकर आज बीजापुर कांग्रेस यूनिट की ओर से कांग्रेस के नेताओं में अब्दुल हमीद मुशर्रफ, कर्पूर मठ, शकील अहमद बागमारे, गंगाधर संबानी, एमसी मुल्ला, फयाज कलादगी, मैनुद्दीन बिलगी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे मौजूद। एफआईआर करके फौरन देश विरोधी बयान और गांधी जी के अपमान पर एमएलए यतनाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की कांग्रेस के नेताओं ने। ನಿನ್ನೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಿಮಿಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜಾಗೆ ಬಂದಾರ MLA ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಜಾದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಮೈ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟಾರ. ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಡೆದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ MLAಗೆ ಯಾರೇ ದೇಶ ಆಜಾದ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ಅದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತದೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ MLAಗೆ ಏನು ಅವಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನರೇ ತಿಳಿದಾರ. ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂದಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಮುಸಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಅರ್ಬಿಲ್ದವ್ರು ತಿರ್ಗಾಡ್ಯಾರ. ಇಂಥ MLA ದೇಶಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದಿ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವಂಗೆ BJPಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಂತ ಏನರೇ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏನರೇ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ BJPಗೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ಲಾಕತ್ತಾನೆ. ನಾ BJPಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೊಳಗೆ ನಾವ್ರಿ ಹೆಣನೂ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಬಾರ. ನಿನ್ಗೆ ಹೆಣಾರ ಬಿಡು, ನೀನು ಮ್ಯಾಗ ಉಗಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಫ್ಆರ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬಂದೀವಿ. ಇದು ನಾವೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೋಮುಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅವರು ಅಜೀತ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರು BJ ಬಂದು ಇದ್ದರು. ಅಟ್ಟಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳಕತ್ತಾರೆ, ಎಫ್ಆರ್ ತಗೊಳಕತ್ತಾರೆ. MLA ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಇರಲಾರ್ದೆ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರದಾರ. ಅದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾವಾದವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಂಬ್ತದೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಂತೆಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಶರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೂ ಇರಲಾರ್ದೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಅರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶದಾಗ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ, ಅದು ಸಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಂದೇವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಧೈರ್ಯವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು.
ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದೆವು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ನಾವು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया गया है कि देश के पितामह का अपमान किया गया है। अगर देश के पितामह का अपमान होता है तो ये समझिए ये पूरे देश का अपमान है, देश के हर एक नागरिक का अपमान किया गया है। ये हमें इस बात की शर्म है कि जो काम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को खुद करना चाहिए था, सो मोटो करके स्वयं प्रेरित ने केस दर्ज करना चाहिए था बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के खिलाफ, जिन्होंने हमारे महात्मा पितामह गांधी जी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें पाकिस्तान का पितामह घोषित करने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये नेता चड्डी पहनते पहनते पैंट भी पहनने लगे, मगर इनके दिमागों में अभी भी गोबर भरा हुआ है। हम यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमें शर्म इस बात की है, ये जो सो मोटो खुद पुलिस डिपार्टमेंट देश के पितामह पर जब का अपमान किया जाता है तो खुद पुलिस स्टेशन खुद स्वयं प्रेरित केस दर्ज करना पड़ता है। मगर यहाँ पर हम तकरीबन 500 से 600 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, और इंशाल्लाह में यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर ज़रूर करेगा, एफआईआर होगा। अगर एफआईआर नहीं होगा तो हम खामोश नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे देश के पितामह पर अपमान किया गया है। हम इस पर कभी खामोश नहीं होंगे। हम यही कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो भी शख्स किसी भी खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ हो या किसी महात्मा के खिलाफ जब बोलता है तो जनता को क्यों पुलिस स्टेशन तक पहुंचना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही है कि आपकी इंटेलिजेंसी सोई है? कोई आता है नेता और यहाँ तक के देश के महात्मा के ऊपर यानी कि देश के पितामह को तक वो पाकिस्तानी का राष्ट्र पितामह घोषित करने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे सरकार और हमारे देश हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात है कि जो काम उन्हें करना था वो हम खुद यहाँ जनता आकर एफआईआर कर रहे हैं। कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी के चलते हमारी एक टीम ऑलरेडी सीएम से हमने मुलाकात की है कि यही नहीं, जो भी हेट स्पीच देता है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करना चाहिए। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। जो भी धर्म की नफरत की सियासत करता है उस नफरती नेता के खिलाफ स्वयं प्रेरित होकर उसे जेल भेज देना चाहिए। हमारी ये मुहिम शुरू है, हम इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ ही नहीं, इस जैसे कितने भी लोग हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जो नफरत बांटने चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी बोलते हैं, आपके सीएम को तक वो जो है पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। ये सिरा में जो सीएम है मुख्य उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। सीएम को वक्त भी नहीं होता है कि राज्य की कितनी न्यूज़ें देखेंगे वो, ये लोकल न्यूज़ों में आ जाते हैं ऐसे से, ये डायरेक्ट बड़े स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि कोई उनके खिलाफ कह दिया है। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोदी जी के बारे में भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्शन हो। वो एक वक्त होता है, लेकिन इंशाल्लाह एक्शन होगी। और हम भी जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो भी ये देश में नफरत पैदा करने की भाषण कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। पहले तो मुसलमानों को बोला करते थे, फिर उसके बाद फरवरी तक बात आई, फिर अब ये महात्मा गांधी तक बात आई, फिर आगे कहाँ तक ये नहीं, मैं आपको बोला ना, उनके दिमाग में अब गोबर भर गया है। जैसे ही पार्टी से उनको निकाला गया है, उनका दिमाग पूरी तरह से पागल हो गया है। वो खुद मुस्लिम धर्म से होते हुए खुद अपने पार्टी के नेताओं को गाली देने लगे, फिर पार्टी को गाली देने लगे, यहाँ तक कि अपने मज़हब को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मज़हब के महानता बसवन्ना को भी नहीं उन्होंने बख्शा। तो आप सोचिए ये कितना पागल किस्म का इंसान होगा। ये पूरी तरह से पागल हो गया है, अब इसे पिंजरे में डालने की ज़रूरत है। तो हमारी भी अपील यही है कि सरकार से जल्द इस पागल को पिंजरे में डाले, नहीं तो ये एक बीजापुर ही नहीं पूरे कर्नाटक का माहौल ये ख़राब कर सकता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। पागल कह रहे हैं, पागल का इलाज क्या है? पागल का इलाज वही है कि उसे पिंजरे में डाला जाए। तो नहीं, आपका सरकार को कहना पड़ रहा है नहीं, उसके रूल्स होते हैं ना, हम उसके रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी सीएम से भी हमने मुलाकात की है, ऑलरेडी प्रोसेशन चल रहा है और ऑलरेडी हम यहाँ पर भी पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं हमारी हर तरह से कोशिश जारी है।
अब वो जो प्रोसीजर के हिसाब से जो काम होता है होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सर, राजा सिंह ने भी इसी तरह की जो है एक प्रवादी के बारे में हेड स्पीच दी थी, फौरन उसको अरेस्ट किया जाता है वहाँ पे। नहीं, राजा सिंह ने प्रवादी के खिलाफ तो अभी तक बोला गया था कि नहीं भाषण की। दिया गया था। जी जी तो उसके फौरन बाद ही वहाँ की सरकार जो इमीडिएटली वो भी शासकीय थे, जी जी। उन्हें भी रूल्स हैं, फिर क्या यत्नाड़ को अलग रूल्स है? नहीं, किसी की देखिए, देश का कानून कहीं भी जाए एक ही होता है, तो देश के कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। देश के कानून के हिसाब से जहाँ जहाँ भी एफआईआर हुए हैं वो उस सेक्शन के हिसाब से नहीं हुए जो सेक्शन डालना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्लेंट हमने दिए हैं ये हमारी भी गलतियां हैं। अगर हम सही तरीके से वकीलों की राय मशवरा करके अगर कंप्लेंट देते तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलता। ये इमीडिएटली हम बिना सोचे कुछ कह दे तो जाते हैं और कंप्लेंट दे देते हैं और वो एक्ट नहीं डाले जाते जिसमें गिरफ्तारी की जाए। ये इस तरह की ज़रा हमारी भी विफलता है। तुम्हारे एक्शन पर एमएलए बसनगढ़ा के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन होता है, लेकिन फायदा तो एमएलए को जरा पब्लिसिटी उसे मिल रही है। किस तरह की पब्लिसिटी बोलना चाह रहे हैं? अभी तुम्हें जो बैठ दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, इससे वायरल तो होने वाला है। नहीं, देखिए, आप वायरल मत सोचिए। ये देश के पितामह का अपमान किया गया है। अरेस्ट कौन सी बात पर अरेस्ट नहीं, उसी लिए तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए ना। और मैं यही आपसे पहले ही मैं ये कहा कि हमें शर्म की बात है कि हम लोगों को तो पुलिस स्टेशन भी आना नहीं चाहिए। जबकि पितामह को जब पितामह की बेइज्जती की जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज होता है कि वो स्वयं पीड़ित होकर इस नालायक पर कंप्लेंट दर्ज करें, मगर नहीं होता तो हमें भी शर्म की बात है। अगर जल्द से जल्द कंप्लेंट नहीं हुआ तो आप जैसे बोले हमारी सरकार है, हम सरकार तक, यहाँ तक कि सिद्धरामैया जी तक भी हम इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और एफआईआर ज़रूर करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं। ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಇವರು ವರದಿಗಾರರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಇದನ್ನು ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಯದ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾರು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ. आज बीजापुर शहर के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में हमारे बीजापुर शहर के बीजेपी से उच्चाटित एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ को उनके नाम से यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए हमारी कांग्रेस की और पूरे दीगर हमारे जो ये हैं सब मिलकर आकर उनके ऊपर एफआईआर करने आए थे। ये जो मसला है पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर जिस महात्मा ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, उस महात्मा गांधी को आज ये पागल एमएलए पाकिस्तान का महात्मा बोल रहा है। ऐसे पागल एमएलए का इलाज आज हम लोग कानून के दायरे में आकर यहाँ पर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करके आने वाले दिन में इस एमएलए को इतनी भी नॉलेज नहीं है, इतना भी इसके अंदर शुरूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है महात्मा गांधी जी ने। आप लोग इस बात को समझिए, ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसका जो पद है इसका दुरुपयोग कर रहा है और चंद मीडिया वाले अपनी जो पॉपुलैरिटी के वास्ते उसको जाकर ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहे कि आपने महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के वास्ते ऐसी बात क्यों की। क्या ये उन मीडिया वालों का फर्ज नहीं बनता जो वहाँ पर थे? मीडिया वालों का भी ये फर्ज है कि उनसे ये क्वेश्चन किया जाए कि महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वो पाकिस्तान में क्यों लगाया जाए। क्या ये बात इनको राजी है? अगर है तो ये पूरी आवाम के साथ आकर ठहर कर ये पूछे कि महात्मा गांधी जी के साथ आज जो इन्होंने गद्दारी का काम किया, ये पहले से भी गद्दार हैं। इस देश के गद्दार असल में यही हैं और आज इन्होंने इनकी ज़बान से बोलकर दिखाया है कि महात्मा गांधी इस देश के
वास्ते जो कुर्बानी दी है उनके पैर की धूल भी ये बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल नहीं है। सर आपकी सरकार है राज्य में, तो आपको एफआईआर करने आना पड़ता है हमें जाको हमारे सिद्धरामैया साहब सीएम साहब को मिल को कल हमारा एक डेलीगेशन ये बीजापुर के एमएलए को अगर पूरे कानून के दायरे में अगर आप पाठ नहीं सिखाएंगे तो जनता इसके ऊपर एक्शन लेगी। जनता आने वाले दिन के अंदर इनके ऊपर एक्शन लेगी। आप लोग पूरे डिपार्टमेंट को समझाओ और स्लो मोटो केस होना था, ये नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारे बीजापुर की। और बीजापुर के एसपी डीएसपी साहब हमारे पूरे बीजापुर को शांत रखने के अंदर कामयाब हुए, लेकिन इस एक बात से महात्मा गांधी जी के अपमान से हमारे ऊपर एक धब्बा बैठा है। मैं पूरी एसपी साहब से और डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे कड़े कानून के अंदर इनको जेल में डाल दिया जाए ताकि ये पूरे इलेक्शन के बाद में तक इन्होंने बाहर नहीं आना। और बहुत बात न को करो, ज़्यादा बात ऐसा खाली मुंह पर बात कर को मैसेज क्या भी एक गलत मैसेज दे को जाने का काम बसवनगौड़ा जो कर रहे हैं ये नहीं करने का, सही मैसेज दो। महात्मा गांधी अगर नहीं रहते थे तुम्हें आज अंग्रेजों की बूटा साफ करते रहते थे गौड़ा साहब, बसवनगौड़ा साहब। अगर महात्मा गांधी जी की कुर्बानी नहीं रहती थी तो अंग्रेजों के बूट साफ करते रहते थे आप और पूरे हिंदुस्तान के। और तुम्हें आज हम ना बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी को बोल रहे हैं, शर्म आना तुम ना। एफआईआर दर्ज करें, पुलिस डिपार्टमेंट वाले एफआईआर करतू कर को बोले, शाम तक एफआईआर होती और उसे जेल भरने तक लगाते हैं हमें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।